हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARYZ ऐप। द न्यूज़ आउट ऑफ हैदराबाद on our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 is that New Zealand have won their second game against the Netherlands in Hyderabad. Congratulations to all the Kiwi fans around the world. Another very clinical performance there by them now. Earlier today, Netherlands won the toss, elected to bowl first. We're going to talk about that and a lot more with our panelists. With me in the pavilion, I've got the four greats of the game and one royalty. So I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Gentlemen, welcome back. Let's take a look at the match summary. First up, this is how it all went down. Netherlands winning the toss and deciding to bowl first. New Zealand putting up 322 runs, and look at that scorecard. Will Young coming up with that 70 at 87 strike rate, which was a very decent strike rate. Ravindra again coming to the party with 100% strike rate for his second half century. Latham there, another 53 there by Tom Latham. It's looking really good now. Aryan Dutt bowled really well. 10 overs, 2 wickets at a 6.20 economy rate. And Meekran also contributing with 2 wickets. And so did Vandermeer picking up 2 wickets. In reply, it was not enough effort from Netherlands batting. Only Colin Ackerman putting up 69, or unke saath the captain Scott Edwards putting up a 30. 223 at the end was the score, and with that New Zealand take 2 more points and move up the table. Well, stay on top of the table because they were already on top of the table. So congratulations to the Kiwi fans. Let's start off with Seam. Yes. Another clinical performance from New Zealand, looking really good, and still Williamson is not in the squad. Yes, looking really good. And Tim Sadi, they're one of the most experienced fast bowlers. But like I said, they had before all bases covered. Spin ka le lein aap, inki fast bowling ka le lein. Aaj Ferguson bowled well. He bowled quick. 145, 144 kilometers an hour. तो वो सबको उसने ज़रा although उसको wicket नहीं मिली, but he bowled well today with such a slow deck. But it's right time कहते हैं कि ये टीम बड़े आसानी से मैच जीत रही है, comfortable खेल रहे हैं. It seems like they're nicely gelled as a team and they're enjoying each other's company. It's a long tournament, as we all know, about 45 games, and teams have to stay in the hotel. There'll be security and everything. So yeah, they're looking really good, New Zealand. Yeah, they are. So Conway only 32, but Will Young, Misbah 70 बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया और साथ में उनकी पार्टनरशिप लगी रविंद्रा के साथ. But tell us more about Will Young and his batting. आई थिंक पाकिस्तान के टूर पे भी आए थे और अच्छे प्लेयर हैं, और नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने शुरू किया, अब ODI क्रिकेट में खेल रहे हैं और कंसिस्टेंटली उनको चांसेस दे रहे हैं. जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि विलियमसन से जब बात होती तो यही कहता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, बस जो हैं उन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. और लुक एट इज बैटिंग, आई मीन कहीं से भी नहीं लगेगा कि उनका कोई प्लेयर मिसिंग है. द वे ही जस्ट हिट दो स्ट्रेट ड्राइव्स, इवन स्पिन को कितना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और स्वीप शॉट्स भी खेल रहे हैं. तो ओवरऑल इन कंडीशंस को देखते हुए न्यूजीलैंड नोज़ कि हमें किस किस्म का प्लेयर चाहिए एट द टॉप. अनलकी रहे थे पहले मैच में, टांग से आउट हुए थे, तो टुडे ही जस्ट गॉट रन. सो नाउ दे आर हैविंग, आई मीन एवरीबॉडी एट द टॉप इन फॉर्म. विलियमसन नहीं है, बट स्टिल कोई फील नहीं हो रहा कि विलियमसन नहीं है. तो अब वो प्रेशर नहीं है, बैठे आराम से, ठीक है. जब वो बिल्कुल फिट होंगे तो वो आएंगे इंपॉर्टेंट गेम्स में जब न्यूजीलैंड को ज़रूरत पड़ेगी. किसकी जगह आएंगे प्लेइंग 11 में? आई नो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट इफ यू हैव टू ड्रॉप समवन, हु वुड यू ड्रॉप? कि वो खुद ही बोलेंगे कि नहीं, मैं 1-2 और मैचेस में मैं रेस्ट करता हूँ. I know he will probably rest. He has to be 100% fit. But my question is, when he gets fit, when he wants to play, because he is one of the top players in world cricket. Yeah. पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रैक्टिस मैच में रन्स किए हैं उसने ठीक ठाक. But I guess country comes first, और वो मुझे ये जरूर सोचेंगे. थोड़ा सा वसीम भाई लगता है वो सेक्रीफाइस करने वाला. लीडरशिप क्वालिटीज़ ये होती है अगर टीम अच्छा कर रही है, आपकी बहुत ही अच्छा कर रही है, और आप समझते हैं इस कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए, तो मे भी कुछ पता नहीं है जिस तरह की उसकी नेचर है, वो स्टेप डाउन कर जाएगा कि नहीं इस टीम को खिलाओ और जैसे चल रही है. मुझे आने की जरूरत नहीं है. I'll stay with the team throughout. It won't happen, guys. Come on. It won't happen. I think विलियमसन इज़ द की. अंडर प्रेशर पिछला वर्ल्ड कप फाइनल देखें, T20 देखें, ही इज़ वन गाय. जब अंडर प्रेशर बड़े मैच आते हैं, टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसका टेम्परामेंट ऐसा है.
अब विल जंग जो मर्जी है जैसे मर्जी प्लेयर हों, लेकिन विलियमसन को मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है व्हेन इट कम्स। आई एग्री, लेकिन उसका वर्ल्ड जो कप को एक्सपीरियंस 4 साल हो गए हैं, 4 साल में उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया। ही द वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हर चीज वहाँ है। ये भी बात सही है बट आपकी। टीम कम्स फर्स्ट। ऑलराइट, रविंद्रा की बात कर लेते हैं ना। आज फिर बड़ी जबरदस्त सेंचुरी उन्होंने की है, एक विकेट भी हासिल की है। एक वापस ले लिया। सो डन रियली वेल श्वेत। और बैटिंग के बारे में आप देखें जरा, आज फिर उनका नजर आ रहा था फ्लेयर। वो आएगा नज़र। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट 100 नॉट आउट किया है और उन्होंने ब्रुक की विकेट भी ली थी उस मैच में। ये देखें, हर तरफ अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मिसबा भाई ने कहा था। तो ये कंप्लीट पैकेज हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। मैंने देखा है उनको आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए। तो इज अ कंप्लीट पैकेज। मेरे ख्याल में ये ब्लेसिंग्स है न्यूजीलैंड टीम के लिए कि एक यंगस्टर जो है ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यूजुअली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सीनियर्स हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, बट रविंद्रा एक्सीलेंट। एब्सोल्युटली। टॉम लेथम, आज जो हमने सुबह जब बात की थी प्री मैच में, तो जो प्लेयर ऑफ द टू वॉच आउट फॉर किया था, तो मोइन आपने लेथम को जो है वो कहा था कि मैं इनको चूज करता हूं, और आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी गाड़ी है और वो भी 115.71 की स्ट्राइक रेट के साथ। गट फीलिंग आ रही थी। और मिसबा ने कहा था कि लेथम की तो बारी नहीं आएगी भाई, तो ये भी ऑन द रिकॉर्ड बतानी जरूरी है। वो उन्होंने इसलिए कहा था कि वो खाने में उनकी बारी नहीं आएगी। बट मिसबा बहुत सीरियस है इस बात पे, बिल्कुल नहीं एक्नॉलेज करना चाह रहे मिसबा इस वक्त कि इस तरह की कोई बात हो रही है। खैर कोई नहीं, लगा रहे फोन पे अपने, लगा रहे जी। बट लेथम ऑफ कोर्स नो डाउट सबको पता है जिस तरह के डिपेंडेबल प्लेयर है, यू नो, कम्स इन द मिडिल ऑर्डर जहाँ पे एंकर रोल प्ले आपको करना पड़ता है, यू नो। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कंट्रोल इनिंग कहूँगा। छोटी ज़रूर थी, इतनी बड़ी इनिंग नहीं थी, लाइक ही गॉट ओनली 53 रन, बट अगेन कमांडिंग लगे मुझे। बहुत कमांड के साथ खेला है उन्होंने और ऑन दी अब बड़े अच्छे शॉट्स मारे, इधर फीट यूज़ किया, मिड ऑफ ऊपर खड़ा हुआ था। यू नो, ये इम्प्रोवाइजेशन जो होती है ये डिफरेंस क्रिएट करती है एक आम प्लेयर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर के अंदर। तो आई थिंक ही हैज़ ऑल द गट्स to become a world class player इस नंबर का। Right, and he showed it, you know, it was on display today. बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेदरलैंड्स की बॉलिंग के हवाले से वसीम। Today, well, you know, it's Netherlands bowling, ठीक है ना? Yeah. But you have Aryan Dutt, उन्होंने 2 विकेट्स हासिल He bowled well, he really bowled well today. Very impressive. Yeah, and very Because good पहले economy. 10 ओवरों में 42 डॉट बॉल्स थे जी हाँ। कीवीज के, उसमें से सिर्फ 63 रन किए। बट इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। दे रिकवर्ड इन द एंड, बट उन्होंने विकेट गंवाई नहीं। सो क्रेडिट टू द बॉलर्स जिन्होंने पहले 10 ओवर किए हैं, स्पेशली आर्यन दत्त। उसने शुरू में 2 ओवर तो कंसेक्यूटिव आई थिंक मिडिल किए थे। पहले 3 तीन ओवर थे, किए वो उन्होंने। मेडन दो थे। से वो थे। 4th ओवर में जाके 2 बाउंड्रीज लगी हैं। And you have to give it to Netherlands discipline and commitment and consistency, because they are the best team when it comes to the power play, the first 10 overs, कि सबसे कम रन देते And I हैं। think, और आज फिर उन्होंने वो साबित किया अपने उसमें। और ग्लोबलाइजेशन इस गेम की करनी है। सो अब जैसे नीदरलैंड आए, सो जब तक ये इंटरनेशनल टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ रेगुलर नहीं खेलेंगे, ये इंप्रूव नहीं हो सकेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। ये वो वाले फर्स्ट ओवर हैं 3 जी हाँ। जो मेडन हुए, और ये जो वसीम भाई बात कर रहे थे दत्त की, और बहुत अच्छा उनका ना वो लूप से आता है बॉल, बिल्कुल ऐसे और ही है। सीम पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। और ज़रूरी नहीं कि लेफ्टी को तंग करते हैं, राइटी भी अगर आ जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी लाइन है। न्यू बॉल के ऊपर अगर एक आधा गेंद भी टर्न हो जाता है ना, वहाँ टोटली डबल माइंडेड हो जाता है बैट्समैन कि अब क्या होगा। अब यू नो, क्या होगा? एक ब्रेक की बात होती है। यू नो, नॉर्मली इट्स गेट्स इन, नया बॉल जितने भी ज़्यादा, उसमें अगर एक ब्रेक होता है तो हर प्लेयर को ये प्रॉब्लम आती है। और मेरा ख्याल है कि मिसबा भी इसको बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज़ को। एक चीज वैसे जस्ट वांटेड टू गेट इनटू इट कि ये स्पिनर को नए गेंद के साथ लाने का पहली दफा ओडीआई के अंदर तजुर्बा किसका था? ये न्यूजीलैंड के था, दीपक पटेल। दीपक पटेल के साथ। I remember, yeah. वर्ल्ड कप में आप लोगों हाँ, he bowled really well. How difficult was it to, because you were seeing it for the first time? Everybody was. Yeah, कि स्पिनर आ रहा है नई गेंद के साथ। Yeah, everybody was seeing him the first time. So credit to New Zealand captain at Martin Crowe, one of the greats of the game. Unfortunately, he's no more with us. But what a player he was, what a captain he was. उसने ये शुरू कराया था और he bowled really well in 92 वर्ल्ड कप में। दीपक पटेल जो न्यूजीलैंड था पहले, उनके सारे मैचेस अपने होम थे। सो 7 के 7 मैच, 8 मैच थे ईच टीम ने खेलने थे।
I think there were 9 teams. So 7 के 7 match they won in New Zealand. They looked really great. Yeah. And then obviously when we went there and group match में हम जीते, फिर सेमीफाइनल में मोइन और इंजी ने जो बैटिंग की और जावेद भाई ने 50 किया. Memorable. Win. Memorable. और मोइन ने स्वीप मारी तो सीधा छिक्का मार दिया. Really? नहीं, बड़ा मजे का वाक्य. लाइक जिस वक्त मैंने स्टांस लिया, मैं खड़ा हुआ तो इत्तेफाक से लाइक बंदा एकदम सामने देखता तो है, तो मेरी गर्दन थोड़ी सी ऐसे उठी तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ये सामने बाउंड्री है, बिल्कुल छोटी है मुझे सामने छोटी वाली. बाउंड्री, यू नो. तो एकदम अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि अल्लाह करे इधर ही बॉल मिल जाए, यू नो. कि ये एक पैट शॉट है मेरा, मैं थोड़ा सा बैट इधर से लेके आता हूँ, लगता है ऐसे कि मैं मिड विकेट की तरफ जा रहा हूँ, यू नो. एट द एंड मैं इसको ऐसा गाइड स्लाइड करता हूँ थोड़ा सा बल्ला, तो वो टापो टाप छक्का था, वो बहुत बड़ा छक्का था. वो किसी बड़े ग्राउंड में भी छक्का हो जाता है. जो भाई आपकी और इंजी भाई की पार्टनरशिप हुई, आप लोगों की क्या बात हो रही थी उस वक्त, क्योंकि बड़ी क्रंच सिचुएशन थी. इंजी की नहीं पार्टनरशिप हुई थी, मतलब मेरी जावेद भाई के साथ. इंजी आउट हो गया तो इंजी अपना काम कर गया था, वो काम कर गया था. Damage कर चुके थे. या तो जावेद भाई से क्या बात होती थी? I'm very curious because he was also good in running between the wickets. He had a bad back. आपको याद होगा जावेद भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, एक तो उन्होंने लेट ज्वाइन किया था बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, और जब आ भी गए थे उन्होंने बड़ा एंकर रोल प्ले किया था, यू नो. आउट ऑफ 10 मैचेस ही स्कोर्ड 7 हाफ सेंचुरीज इन दैट टूर्नामेंट. तो मैं जिस वक्त बैटिंग करने गया नेचुरली एग्जॉस्टेड थे थोड़ा सा, तो जावेद भाई ने मुझे आते ही बोला, मैंने कहा कि जहाँ भी जावेद भाई ने कहा मौका मिले ना मोइन तूने हिट मारनी है. मैंने एनर्जी मेरी थोड़ी सी कम हुई हुई है, तो मैंने कहा ओके ठीक है जावेद भाई. एंड आई वाज लिटरली प्रेइंग इन द ड्रेसिंग रूम जब मैं टीवी में मैच देख रहा था. मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि आज अगर अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के नसीब में ये जीत है तो मैं पिच पे हूँ मौजूद, मैं आखिर में मौजूद हूँ और मैं विनिंग शॉट कर लूँ. वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने, मैं मौजूद था, यू नो. फिर जावेद भाई ने एक कहना चाहिए कि एक लाइसेंस दे दिया कि जाओ तुमने मारना है, यानी जब भी तुम्हें मौका मिले. एंड आई जस्ट सॉ द बॉल एंड हिट किया और फिर अगला और वो जो छक्का इसने मारा, हम सारे ड्रेसिंग रूम में थे. वो ड्रेसिंग रूम ऐसा था कि जो स्टैंड्स है ना उसके नीचे उसकी खिड़कियां थी छोटी छोटी, तो हम वहाँ से देख रहे थे, नहीं तो आपको बाहर आना पड़ता था ऊपर. सो हम यहाँ खड़े थे उन्हीं खिड़कियों से हम देख रहे थे जाली से कि क्या हो रहा है. जब ये आवाज़ आई है और टीवी पे देखा है, सो वी थॉट जॉब डन. Job really well done. मुझे तो मैं थोड़ा सा छोटा शेयर करूँगा वाकया. मुझे सिर्फ ये फिक्र थी, मैंने कहा कि इस वक्त स्किपर क्या सोच रहे होंगे, यू नो क्या. तो मैं जैसे आया हूँ ना, मैच खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ माहौल, मैंने इंजी से जाके पूछा, मैंने कहा यार इंजी ये बता जब मैंने छक्का मारा तो स्किपर की क्या रिएक्शन. कह रहा यार उन्होंने लुड्डी डाल दी. मैंने कहा वाकई वो पहली दफ़ा इमरान भाई ने कभी डांस किया था, यू नो. Seriously? सीरियसली. तेरा क्या मतलब है, हम की नाचते रहने ऐसे? Seriously. No, because we never heard कि जी इमरान भाई ने कभी जो है वो डांस किया हो, तो बड़े शाय आदमी थे. Yeah, no, वो पाकिस्तान सिर्फ जब शोल्डर पहुंचा लाया था है, ऐसे ऐसे करके. World क्रिकेट भी तो डाउन का. वर्ल्ड T20 में जब पाकिस्तान पहुंचा है तो हमने नहीं किया यहाँ पे डांस. हाँ वो जो बाय द वे का तो famous आपका dance है और ये. वकार यूनुस का जो डांस है वो तो बैनुल अक़वामी सतह पर फोक जो है ना मशहूर हो चुका है. इनफैक्ट जो वेस्ट के अंदर बड़े बड़े नाइट क्लब्स हैं वहाँ पर आप लोगों को पूछते हैं वो लोग और यार क्या टोरंटो से जबरदस्त. स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है कि शादी है तो लड़ मुंडिया नु भेज दियो. एक तो ऑलरेडी गए थे ना. जरा आगे गिद्दा पाएंगे. पॉइंट्स टेबल में नजर डालते हैं. There you have it. New Zealand right on top there. थोड़ा सा net run rate उनका कम हुआ है, लेकिन they do have those important points on their side. South Africa बिल्कुल ट्रेल कर रहा है, लेकिन South Africa ने एक मैच खेला. So now New Zealand and Netherlands are the only two teams जिन्होंने दो मैचेस खेले हुए. But look at that points table again. New Zealand on top, South Africa number 2, Pakistan number 3, Bangladesh number 4, India number 5. Australia number 6, Afghanistan 7, Netherlands 8, Sri Lanka 9, and England, the defending champions, right at the bottom of that table. Again, याद रहे कि सारी टीमों ने एक दूसरी टीम के साथ मैच खेलना है. So this is a long tournament ahead. How this table settles in, we don't know. But top की जो 4 टीमें होंगी इस टेबल पे वो सेमीफाइनल खेलेंगी और यहाँ से कहानी आगे चलेगी. And with that, it's time for a break right here on the Pavilion. देखते रहिए A Sports, Sen Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023.
Welcome back from the break. आप देख रहे हैं Pavilion. मैं हूं फखर आलम and you're watching A Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me, the four greats of the game of cricket in the Pavilion. I've got Shoaib Malik, Moin Khan, Misbah-ul Haq and the great Wasim Akram. बात कर रहे थे आज के मैच की, Netherlands versus New Zealand. New Zealand wins the match. Congratulations. Point table आपके सामने था. Gentlemen, we were talking about the Netherlands bowling and how New Zealand has performed in this game. जरा थोड़ा सा बात करते हैं. एक विकेट कीपिंग इंसिडेंट्स हुआ आज, एक बल्कि स्टंपिंग हुई, उसके बारे में बड़े डिवाइडेड लोगों के हम फीडबैक देख रहे हैं. उस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये स्टंपिंग कैसी थी. मोइन, एंड वीड लाइक टू टेक यू ऑन बोर्ड एंड मे बी यू कैन टेल अस कि कैसे होना चाहिए. सो लुक एट दिस. सबसे पहले जो इम्पैक्ट आया उसमें बैट्समैन को तो नहीं पता चला कि क्या हुआ, और वो आउट होने के बाद बाउंड्री भी क्रॉस कर चुके थे. जो एक्चुअल रूल है वो रूल ये कहता है कि जिस वक्त आप गेंद पकड़े यानी डिलीवर हो, एक तो बॉल जिस वक्त डिलीवर हो रहा हो, डिलीवर होके बॉल आ रहा हो, तो विकेट कीपर के हाथ आगे नहीं जाने चाहिए. बिल्कुल, ठीक है, क्रीज से. या इसमें स्लाइडली आपने देखा एक दो फिंगर उनकी आगे गई थी. इसी वजह बेनिफिट ऑफ डाउट मैं समझता हूँ कि ये दिया गया. बट यहाँ पे जो भी ब्रॉडकास्टर को एक और कैमरा, एक तो स्पाइडर कैम भी है, बट विकेट के एंगल में एक कैमरा और प्लेस करना पड़ेगा, वहां से एग्जैक्टली बिहाइंड और पीछे के आगे ऑन द स्क्वायर ऑफ द पिच. स्क्वायर तो थी, पॉइंट या स्क्वायर पे है स्क्वायर, बट जो एंगल है वो जो पॉपिंग क्रीज है उसकी सीध में कैमरा लगा होता है ऑन द स्क्वायर. तो वो जो एंगल बना है उसमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि उसके हाथ कितने आगे गए. तो ये मेरा एक्चुअली कैमरा तो होता है ना मिस, रन आउट के लिए कैमरा होता है. वो क्या ये एंगल मैं समझाता हूं. लाइन के सामने होता है. यहाँ पे स्टंप्स लगी हुई हैं, स्टंप्स की लाइन में नहीं. मैं कह रहा हूँ स्टंप्स की लाइन में भी जस्ट टू गेट द बेटर लुक. वो राइट, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे. हालांकि मुझे विद द नेकेड आई व्हेन आई सॉ इवन द रीप्ले, जी नेकेड आई में वसीम भाई नहीं पता, मुझे तो आउट लगा है. नहीं आउट था वो, वैसे तो आउट भाई था. बात कर रहे हैं ना, जब कैमरा चला गया ना पॉपिंग क्रीज पे, तो वो एंगल थोड़ा सा आपको क्रॉस नजर आएगा. तो अगर थोड़ा सा भी बाहर, अगर वो बराबर भी होगा तो लगेगा जैसे लगेगा थोड़ा सा आगे है. जैसे हम अपने पिछले रूम में बैठे होते हैं और डीआरएस दिया जाता है, कोई उधर कॉर्नर वाली सीट पे बैठा होता है, वो कह रहा है लेग स्टंप पे है. जो टर्निंग पिचेस होती है ना, वहाँ पे विकेट कीपर स्लाइटली थोड़ा सा पीछे बैठते हैं. यहाँ पे लाइक मैंने देखा जो विकेट कीपर से गलती हुई, एक तो बहुत क्लोज बैठे हुए थे वो, और जल्दी स्टंपिंग करने के चक्करों में कि मैं जल्दी बॉल पकड़ लूँ, आउट कर दूँ जल्दी से. आपको फ्रैक्शनली, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. आपको जहाँ पे गेंद स्पिन हो रहा हो, स्लाइडली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको वेट करना होता है. पीछे क्यों खड़ा होना पड़ता है? बिकॉज टर्न होके बॉल आ रहा होता है ना, अगर आप आगे से पकड़ेंगे तो वो ग्रिप सही नहीं करेगा, वो पॉप हो सकता है दोबारा गेंद. तो इसकी प्रैक्टिस ड्रिल करनी पड़ती है. मुझे लगता है कि वो इतनी दूर से हाथ से बॉल निकलते ही बैट्समैन तो बीट हो गया था. उसकी वजह से भी अनइंटेंशनली भी जो है विकेट कीपर वो जल्दी से नजर ही जल्दी आ गया, जल्दी नजर आ गया, जाते हैं मैं जल्दी से पकड़ के जल्दी से वो कर दूं. बाहर निकल गया था, अगर स्लिप वाला होता ना वो भी कर लेता जितना डिस्टेंस वो आगे निकल गए थे. राइट, ये 27.3 27.31 जो है ये पोजीशन ऑफ विकेट कीपर के ऊपर है. मैं जरा पढ़ दूं तो अगर आपकी इजाजत हो. हम चूंकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं वसीम. सो 27.3.1 जो है, द विकेट कीपर शैल रिमेन wholly behind the wicket at the striker's end from the moment the ball comes into play until a ball delivered by the bowler touches the bat or person of the striker or poses the wicket. So you have to remain at all times behind the I think that pretty much sums it up. But ये एंगल वाली बात दुरुस्त है कि अगर कैमरे का एंगल थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए तो हमें पता चल जाए. और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ है एक और वक्फे का. आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 Sports and the ARY Zap app. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. And remember, hashtag Ask the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. I've got the four greats with me in the studio. Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. बात कर रहे थे हम नेदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के मैच की. न्यूजीलैंड ने अपना ये मैच जीत लिया है and they have now with 4 points right on top of the table. They already were, but they continue to be there. 2 मैचेस खेल चुकी है नेदरलैंड्स और न्यूजीलैंड. बाकी टीमों ने भी अपने सेकंड मैचेस खेलने. Tomorrow we have an exciting day. But Wasim, let's talk about how good was Santner today. He took 5 wickets for 59 runs. That's the first time
a New Zealand spinner has taken 5 wickets in a World Cup game. Yeah, big performance. He's got 7 wickets already from 2 games. He's got runs today as well. 36 of 17 deliveries. Strike rate of 211. A very handy cricketer. A match winner in fact. जब ये नया आया था bowling तो अच्छी थी, अब इसने batting भी अच्छी कर ली है. Fielder भी बहुत ज़बरदस्त है. So he's a complete all-rounder in my book. You know, 5 विकेट लेना, सिर्फ 55 रन दे के फिर साथ में 36 स्कोर करना, you know, is a very apart from being an all-rounder, I think just as a purely इसको bowler देखा जाए तो ये खाली bowling से ही आपको मैच जिता देगा इन विकेटों मजे पे. की बात पता है क्या वसीम भाई, उसने कैप्टन के साथ मिल के 6 फील्डर्स भी रखे हैं, डिफेंड कर रहे थे. Yeah. पार्टनरशिप्स भी लगी छोटी Yeah. लेकिन उसने छठा फील्डर भी अंदर रखा हुआ था. उसको पता था कि जब तक विकेट्स नहीं लेंगे तो अगर 2 बैटर्स भी सेट हो गए तो ये टारगेट जो है ये अचीवेबल है. तो ये बहुत मतलब स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए. Street smart and it's a very brave decision. You see, जब हम बात करते हैं कि ये 10 से लेके 40 ओवर तक पावर प्ले जब ख़त्म हो जाते हैं, आखिरी और पहला और आखिरी, वो 30 ओवर में जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करोगे, थोड़े ब्रेव डिसीजन नहीं करोगे, यू माइट लूज अ गेम और 2 here and there. Yes. बट आई थिंक ज़्यादातर आप मैचेस जीतोगे बिकॉज आप एक्स्ट्रा फील्डर लोगे, अंदर कैचिंग पे रखोगे, शायद आपको चौके भी लगे, मगर मोस्टली है कि आप रन आउट या विकेट ले सकते हो. ये है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्यूचर वनडे क्रिकेट के लिए. और सेंटर की बैटिंग भी जो अभी दिखा रहे थे हम आपकी स्क्रीन के ऊपर, बल्लेबाजी भी मोइन बड़ी ज़बरदस्त रही है. 211% स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने आज बैटिंग की है फॉर द 36. दैट्स एन एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट इन ओडीआई. ऑफ कोर्स जैसे वसीम मैंने बोला, एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट क्रिकेटर है ना. कोई भी दुनिया की किसी भी टीम में सेट हो सकता है आके, यू नो, जिस तरह बैटिंग की है. लाइक ऑल्दो ये तो एक एज था जो नॉर्मली इस तरह की पिचेस पे, बट ये इम्प्रोवाइजेशन शॉट जो है, टाइम लेके बॉल पे नज़र रख के एंड पर्पसली उस शॉट को गैप में एग्जीक्यूट, ये कितना आउटस्टैंडिंग शॉट था. दो इट वाज अ नो बॉल बट बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन थी. ये छक्का भी बहुत ही ज़बरदस्त. लाइक आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट क्रिकेटर और बहुत फॉर्म में इस वक्त. तो ये कॉन्फिडेंस पावर पैक उनका नीचे बना है. हालांकि ग्लेन फिलिप्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और मार्क चैपमैन पे, लेकिन आज वो रन नहीं कर सके नीचे से. लग रहा था कि 300 से कम होगा, शायद एक साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा होता अगर 300 से कम होता, बट लेकिन ये जो 36 की इनिंग थी यहाँ पे आके उनकी, वो बिल्कुल ही एकदम मैच से नीदरलैंड को जो एक थोड़ी सी आपको उम्मीद होती है ना कि चलें हम ट्राई आउट करें, वो 300 प्लस 322 हो जाना, 300 से नीचे होते होते, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्लो था हैंड पे. ऑलराउंडर वही होता है कि जिस तरफ का बॉल हो उस तरफ खेला जाए. और वो हमने देखा कि अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप है, उन्होंने कवर्स में उसको जो है प्लेस किया, गैप्स में खेला, फिर 6 रन भी लिए. फुल टॉस पे नॉर्मली क्या होता है, वेस्ट हाइट, यूजली अ बैटर गोज फॉर अ मिड विकेट हिट, लेकिन उन्होंने कवर्स में ही उसको शॉट मारी. तो आई गेस ओवरऑल जो है न्यूजीलैंड टीम जो है वेल बैलेंस्ड. और अगर मतलब देखें लास्ट मैच में कॉनवॉय और रविंद्रा ने 100 ईच किया, उन्होंने मैच को साइड पे कर दिया. इसमें जो है अगर हम सेंटनर की परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती है आपको मैच जीतने के लिए. तो वो न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम से वो आ रही है. अच्छा, ये हैदराबाद की पिच के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं. हैदराबाद की पिच 3.5 डिग्री का टर्न दे रही थी स्पिन. नाउ इससे ज़्यादा जो है वो आपकी अहमदाबाद की पिच, ये हैदराबाद की पिच थी 3.5, अहमदाबाद सॉरी इज 3.6 डिग्रीज टर्न. Surprisingly, Chennai is not there in the top turning pitches. कल पाकिस्तान श्रीलंका से इसी पिच के ऊपर मुकाबला करेगा. द सेकंड मोस्ट टर्निंग ग्राउंड पे पिच डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है, could be. होगी, we could 100% होगी. we could, but spinners will come into play tomorrow big time. वेल अगेन डिपेंड्स कि पिच अगर इस तरह की होगी जिस पे स्पिन आपको थोड़ा सा मिलने का चांस होगा तो यकीनन यहाँ पे आप खिला सकते हैं. सुबह पिच रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे जब पिच रिपोर्ट तो रहने दियो. आगे तक 5वां 6वां मैच है, किसी पिच रिपोर्ट ठीक नहीं हुई अभी तक. जेनेरिक पिच रिपोर्ट. चेन्नई में भी ड्यू फैक्टर नहीं होता तो फिर
Turn मरला टर्न दिखना था। लेकिन रिले भी हुए हैं सारे पिच, तो चेन्नई वाला भी हुआ relay। वो थोड़ा सा उसका भी था कि वो भी इन्होंने लेकिन फर्स्ट रिले इनिंग्स में हो रहा था टर्न, अगर Yes। ड्यू नहीं आती, ठीक-ठाक क्योंकि जो ही 4 ओवर्स ड्राई बॉल के साथ मैक्सवेल ने किए, मैक्सवेल यूजुअली जो ग्रिप पकड़ता है ऑफ स्पिन की, उससे बॉल Please show कम us टर्न the होता है। swing. Yep. क्योंकि ऑफ स्पिनर जब ऐसे बॉल पकड़ता है, कुछ लोग 3 फिंगर से पकड़ते हैं, कुछ 2 फिंगर से पकड़ते हैं, तो क्या होता है जब आप उसको बॉल को फेंकते हैं तो वो सीम पोजीशनिंग ऐसे जाती है ऑफ स्पिनर की, जो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर हैं। Okay। तो जब हिट करती है तो बॉल टर्न होता है, लेकिन मैक्सवेल जो हैं उनकी मोस्टली ग्रिप ऐसे है, तो जब ऐसे आप बॉल डिलीवर करते हैं तो वो सीम पोजीशनिंग ऐसे जाती है, तो जब सीम पोजीशनिंग ऐसे जाती है तो बॉल टर्न कम होता है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टॉप स्पिन हो या स्लाइडर की तरह बाहर निकल जाए। और हमने देखा है कि वो राउंड द विकेट भी इसीलिए बॉल करते हैं अगेंस्ट राइट हैंडर कि वो फ्लोटर बन जाता है, ताकि बैट पे कम आता है, इस वजह से उनका स्पिन इतना नहीं हुआ। Right there, that was fan of the day, and with that we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Or yaad rahe, hashtag Ask the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. All right, Janab, the way forward for Netherlands, Misbah. द वे फॉरवर्ड ये है कि मेरे ख्याल में इनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी मैच में, जैसे वो पहले बॉलिंग करते हैं, टारगेट यही होता है कि किसी ऐसे टोटल पे वो रोक लें दूसरी टीम को 250 या उसके अराउंड, तो फिर उनके चांसेस हैं। अदरवाइज़ हमने 2 मैचेस में देखा जब स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट वो खेलते हैं तो उनके लिए उनकी जो अप्रोच है, जो एक वो स्कोर वो कर सकते हैं, उससे जब बाहर निकल जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये अफ़गानिस्तान के साथ खेलेंगे। इनको थोड़ा सा टफ टाइम, डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। इवन बांग्लादेश क्योंकि थोड़ा वो खुला खेलते हैं और कहीं पे भी जिस तरह की ये बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे इनको चांस मिल सकता है। ऑब्वियसली दे वांट सम विंस अंडर देयर बेल्ट, यही एक आपका होता है जब वर्ल्ड कप में आते हैं कि एटलीस्ट हम अगर आए हैं तो अगर हम आगे नहीं भी पहुँच सकते तो एटलीस्ट 2-3 मैच कहीं हम जीत के जाएँ। All right, and with that, it's time for your favorite segment, and that is hashtag Ask the Pavilion. और दोस्तों, ये मैं बड़े मोहतात तरीके से कभी रुक के अगर सवाल पढ़ूं तो माइंड ना कीजिएगा, चूँकि ये अब हमें मोहतात तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। तजम्मुल का सवाल है और इनका जो ट्विटर हैंडल है वो रायन हावर्ड FC फैन क्लब। तजम्मुल कह रहे हैं, वसीम भाई ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, सवाल उनका ये है कि वसीम भाई, यू रेकन पाक शुड गो विद फ़खर एंड अब्दुल्ला एट द टॉप इंस्टेड ऑफ इमाम, ऑल्सो यू थिंक 4 पेसर्स अगेंस्ट श्रीलंका आर बेटर ऑप्शन? कल का मैच फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैदराबाद में ही है। हमने देखा कि आज विकेट लुक्ड गुड, नया बॉल थोड़ा ग्रिप किया, सो मेरा नहीं ख्याल कि कम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, बट अब ओनली डिपेंड ऑन द थिंक टाइम के फ़खर खेले या कोई और ओपनर हैं या अब्दुल्ला खेले। आई डोंट नो कौन किसकी फेवर में है। अगर मैं हूँ बाबर की जगह तो मैं आई एम ऑल फॉर यंग प्लेयर्स, मैंने खिलाया भी है अपनी कप्तानी में, बट मैं इसको एक आधा चांस और ज़रूर दूँ फ़खर ज़मान को, अगर इफ़ आई एम देयर। आई डोंट नो पाकिस्तान टीम कैसा सोचते हैं, ये लोग कैसा सोचते हैं। मुझे एक जो है वो खबर दी, शायद हाशमी साहब हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के बहुत बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, उन्होंने ये बताया कि खबर है एंड ही शेयर्ड इट विद मी कि अब्दुल्ला शफीक विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टुमारो एंड फ़खर ज़मान विल बी रेस्टेड। सो आई थिंक बिग कॉल, बिग कॉल। But again, I suppose मैं अपनी बता रहा था, that's what I would have done, but अगर दे रहे हैं उसको चांस तो I hope he should avail that chance with both hands. असल में मसला ये है कि he's a very good player, अब्दुल्ला शफीक, और उसने टेस्ट मैचों में शो किया, जहाँ पे भी खेला उसने इतने रन्स किए, लेकिन मुश्किल हमने अपने लिए खुद इसलिए किया है कि उसको बिल्कुल मैचेस, अब एशिया कप में जब चांस मिला तो 1 मैच खेला है। अब कहीं ना कहीं जब इतने बड़े इवेंट में आप खेलते हैं, एक्सपीरियंस पीछे नहीं होता, तो उसकी बैटिंग में नज़र आता है कि वो बहुत अच्छा खेलते खेलते वो भी कहीं ना कहीं गलती करता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट भी जो है वो उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे उस पर। अदरवाइज आई थिंक जो उसकी टेक्निक है, जिस तरह का वो प्लेयर है, यंग बैट्समैन अगर गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? दैट्स वेयर आई थिंक द टीम, अगर खिलाना है उसको तो फिर उसको पूरा मौका दो। वैसे भी जिस टीम के साथ आपका मैच है, श्रीलंकन टीम के साथ, तो ऑफ स्पिनर जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डिसिल्वा, उसने अटैक किया था,
तो दो लेफ्टी अप फ्रंट अगेंस्ट ऑफ स्पिनर मुझे नहीं समझ आता। एक ऑलरेडी आपका आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरे ने भी रन्स नहीं बनाए हुए। टिक्शाना माइट बी प्लेइंग टुमारो। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चलिए सुबह इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी। वसीम आपके पास भी आ रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आप तीनों से पूछूंगा। सुहेब बशारत साहब ने पूछा है कि व्हाई बाबर आजम डजंट हाइड द कॉइन बिफोर टॉसिंग अप। वो कि यसु पंजू खेल रहा है घर बैठा कह रहा है कि वो कॉइन ऐसे क्यों नहीं करता। वहाँ पे इतना शोर होता है सुहेब के, और इतने मेरा नहीं ख्याल कप्तान गोरों को पता होता है कि वो देखेंगे कि हेड्स है ऊपर तो टेल आएगा। आई थिंक दैट डजंट वर्क लाइक दिस। वैसे नॉर्मली वसीम भाई मुझे लगता है कि वो बड़ा कॉइन अगर हो तो वो जो ऊपर होता है वही आ जाता है नीचे। अच्छा बड़ा लो नहीं तुम कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे मिसबा। We just made it up. Yeah, I know that was a trade secret. सिर्फ एक चीज होती है कि कुछ कोइंस पे बहुत ज्यादा हेड्स आता है, कुछ कोइंस How पे do you आता है gauge that? आता है वसीम भाई। How do you know? नहीं, कोइंस आते हैं ना, वो तो खैर आईसीसी की तरफ आते हैं या जो आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, कैप्टन्स क्या करते हैं या थिंक टैंक क्या करता है कि अगर 4 मैचेस हुए हैं तो एटलीस्ट 3 दफ़ा हेड्स आया हुआ होता है। तो जो कैप्टन है वो जाके हेड्स मांगता है, और फिर जिसने फ्लिप करना होता है ना, वो पता है क्या करता है, वो उसे बजाय सीधा फ्लिप करने के वो उसे उल्टा फ्लिप करता है कि शायद टेल्स आ जाए। तो इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, इस तरह के टैक्टिक्स जबरदस्त नई टेक्निक है ये, तो मुझे पता ही नहीं था। इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं। मैं बड़ा कुछ करता था लेकिन फिर भी क्या 20% काफी मैचेस में क्या थी 20% टॉसेस। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये तो उल्टा फ्लिप किया ना, सॉरी मोइन भाई, सम टाइम अगर कुछ भी नहीं हो ना, जैसे ये कोइन है तो यूं करके भी फेंक देते। अच्छा, वो बीच में ब्लेड की तरह यूं करके, और वो चलते चलते फिर बहुत दूर तक भी कभी चला जाता है। ओपोनेंट कैप्टन अक्सर जब मैं ऐसे फेंक देख रहा होता है ना कॉइन की तरफ, और जो उछालने वाला तो उसको पता लग जाता है देख रहा है, तो ये हरकतें होती है बिल्कुल। बट नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ, जब मैंने कप्तानी की है मेरा सिंपल था, टेल्स मांगना है बस बिल्कुल टेल था। नहीं सुपरस्टिशन नहीं, बस मुझे ऐसा लगता था, फील होता था। और मैंने बहुत टॉस जीते, मैंने बहुत वाकई टॉस जीते, और मैं रहा स्टिक किया मैंने सिर्फ एक चीज के मैं मजहर अरशद से गुजारिश करूंगा, हमारे स्टैट्स करते हैं कि चारों कप्तानों के जो टॉस विन स्टैट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। मैंने तो जब भी फ्लिप किया ना, या मोइन भाई अगर पिछले 10 मैचेस में हेड्स आया हुआ या टेल्स आया हुआ, मैं जब भी गया हूं ना, मैंने जो चीज मांगी है ना, नहीं उल्टा ही है, गर्मी जी फील्डिंग करनी थी। ऐसे मगर मैंने बहुत कम टॉस जीते हैं, लेकिन मैंने स्किपर का रिकॉर्ड तोड़ा था इंतखाब आलम का टेस्ट मैचेस में, 7 टॉस लगातार जीतने का, और मैं 7 ही जीते हैं पूरे दिन। अच्छी बात पता है क्या हुई है, आप दुबई में जीते हो सारे टॉस, जहाँ चौथी इनिंग में यूं घूमता था वहाँ। सही बात है। That's interesting. But I hope मजर आप हमारे साथ स्टैट शेयर कर सकें चारों कप्तानों के टॉस परसेंटेजेस के ऊपर। हसन मतलूब साहब का सवाल है कैप्टन मिसबाहुल हक और वसीम अकरम आपसे। We now see bowlers delivering cross seam deliveries pretty early on in the innings. Does bowling cross seam increase or decrease the chance of reverse swing later in the innings? अभी बड़ा साइंस वाला सवाल है मुझे। It is very sensible and very good cricketing question. Right. अब देखो, मैं अब एज अ बॉलर, अब मैं क्रॉस सीम तब पकड़ता था जब बॉल मेरे कंट्रोल में नहीं था हो रहा होता। आई थिंक नाउ डेज इज़ वन ऑफ द वेरिएशन। ऐसी पिचेस पे जैसे आज मैच था, क्रॉस सीम पकड़ो तो मे बी खिंचा हुआ बॉल थोड़ा रुकता है, मे बी दैट्स वाई। एंड समटाइम्स मी एंड वकार एंड ऑल शोएब बी बोल्ड क्रॉस सीम के रिवर्स स्विंग जल्दी हो जाए, बट मुझे कभी रिवर्स स्विंग में कॉन्फिडेंस नहीं रहा एज अ बॉलर। बट नाउ डेज आजकल की क्रिकेट में, स्पेशली छोटे फॉर्मेट्स में, वाइट बॉल में, ये एक वे ऑफ वेरिएशन है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस किसी का अंदर आता है लेफ्ट आर्मर का, फॉर इंस्टेंस शाहीन अफरीदी की बात कर लें, अगर उसका बॉल ये अंदर आता है तो जब क्रॉस करेगा वो, तो वो क्रॉस जाएगा, वो राइट हैंड के बाहर जाएगा।
ठीक सो सेम गोज फॉर राइट हैंड बॉलर, अगर उसका ये अंदर आ रहा है राइट हैंड को, अगर वो क्रॉस पर करेगा तो मोस्टली वो क्रॉस जाएगा लेफ्ट हैंड से। मे बी ये भी वेरिएशन यूज करते हो। दूसरा ये वसीम इससे भाई- जो वो कह रहे हैं कि रिवर्स, ये शुरू में आप करना शुरू कर बट देते आज हैं ऐसी पिचेस पे तो बॉल वैसे ही इतना पुराना हो रहा है कि 20 30 35 ओवर के बाद दोनों बॉल आप देख रहे हो ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। जी, 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 जी। हमारी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस बिल्कुल। पे तो उसकी जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। मिसबाह, दूसरी sorry। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बॉलर लाइक अगर क्रॉस दी सीम पकड़ के पर्पसली कर रहा है कि बॉल छिल जाएगा, ग्रूव्स बन जाएंगे इसके ऊपर, तो ये कहीं भी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल है कि आप पर्पसली एक ही साइड मारते रहे, Right, क्योंकि right, रिवर्स right. स्विंग करने के लिए आपको एक साइड पे मेंटेन करना होता है उसको, छीलना तो नहीं एक चीज़ कहेंगे, ये बट भी उसके जो ग्रूव्स होते हैं जो बॉल छिलने से आ जाते हैं उसको मेंटेन, उसको ड्राई रखना होता है। आप कोशिश करते थे गीला ना हो ताकि बॉल स्विंग हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। इसके साथ हम लेंगे एक वक्फा, बट व्हेन वी कम बैक देयर आर मोर क्वेश्चंस इन आस्क द पवेलियन एंड वील हैव आवर एक्सपर्ट्स आंसर देम फॉर यू। डोंट गो अवे, कीप वाचिंग A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. और अब से कुछ देर पहले हैदराबाद से खबर ये है कि न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है, so they are right on top of the table and interesting things happening. हैशटैग आस्क द पवेलियन सवालों का सिलसिला जारी है। वसीम से मैं शुरू करता हूं अगला सवाल। वसीम, एहतशाम खान ने आपके लिए ये सवाल भेजा है हैशटैग आस्क द पवेलियन पे। आज का सवाल वसीम भाई से कि फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग ना हो और स्पिनर का गेंद टर्न ना हो तो वो क्या करे? क्या ऐसे बॉलर को एतमाद की ज़रूरत है, डंडे की जरूरत है, या ऐसे बॉलर की जरूरत ही नहीं है? सिर्फ दुआवा मंगे अगर कुछ नहीं हो इट डिपेंड्स कि एज कितनी है बॉलर की। वो यंग लड़का है, वो स्विंग भी सीख सकता है, स्पिन करनी भी सीख सकता है। अगर आप 45 साल के हो तो फिर मेरी एडवाइस है कि रहने दो। बट इफ यू यंग देन यू कैन लर्न। पहले नहीं, अगर 30 भी हो तो रहने दो। दीपंकर इंडिया से पूछ रहे हैं सवाल वसीम आपसे। वुड यू माइंड वसीम भाई टू एक्सेप्ट अ कोचिंग रोल फॉर द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम? फॉर यू फ्रॉम Did you दीपंकर। made this question up? इट्स राइट देयर बॉस, दीपंकर राइट हियर। मुझे कुछ नहीं पता। दीपंकर I think Adi, coaching is not my cup of tea, especially मुल्कों की coaching, India हो even पाकिस्तान हो, because stress बड़ा involved है इसमें. So I'm at that stage in my life कि I don't want to give stress or take stress. वो क्या कहते हैं, stress लेने का नहीं देने का है। बहुत अच्छा है। देख लें, हम यहाँ पे वसीम भाई को स्ट्रेस नहीं देते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। no. ओके जनाब, SSS.com की तरफ से सवाल है, क्वेश्चन फॉर मोइन खान। सर, आप इतना तेज कैसे भाग लेते थे बिटवीन द विकेट्स? टांगों से। दे दिया जी जवाब, मेजबान टांगों से। अभी तक सिंपल सी चीज है यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अभी तक भाग रहे हैं। प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। आपको शौक होता है एक चीज का, अगर आपको रनिंग का शौक है तो सिंपल प्रैक्टिस, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली भागना पड़ता है तेज, तो आप जाके भागने की कहीं क्या प्रैक्टिस करते थे आप? भागने की पैड पहन के रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और कहीं से भागने की प्रैक्टिस की आपने अपनी जवानी में? नहीं, मैंने तो नहीं की, मैंने सुना आपने काफ़ी दफ़ा की है। मैं तो भाग ही नहीं सकता भाई। अच्छा जी, सौरदीप अगेन, सौरदीप 1992, आपका सवाल है, रिक्वेस्ट द पैनल टू डिस्कस हाउ द पाक बॉलिंग कंपेयर्स टू इंडियन बॉलिंग। ऑल्सो कुड नसीम्स वर्कलोड हैव बीन हैंडल्ड बेटर बाय प्रॉपर मैनेजमेंट? व्हाई डज पाकिस्तान फील्ड देयर बेस्ट 11 थ्रू आउट द ईयर? फैन फ्रॉम कोलकाता। Question for all of you guys. Sauradeep, thank you very much for your question. जी जनाब, actually Shoaib, let's start with you. Yes. देखें, नसीम ने जो परफॉर्मेंसेस दी उससे तो उसकी कमी बहुत फील होगी पाकिस्तान बॉलिंग अटैक में। और देखें, कंपैरिजन नहीं बनता इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, बल्कि किसी भी टीम के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं बनता। वो इसलिए कि आप अपने कॉम्बिनेशन को जो है वो सामने रखते हैं कि हम इतने बैटर्स के साथ खेलेंगे, इतने ऑलराउंडर्स के साथ, इतने स्पिनर्स के साथ, तो वो एक
11 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का वो बहुत अच्छी फॉर्म में है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये है कि अपनी जगह दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है और जैसी कंडीशंस हैं वो दोनों टीम्स को सूट करती हैं। All right. I guess I'll leave it at that. We'll take a break. When we come back, there are more questions and Ask the Pavilion. Don't go away. वेलकम बैक टू पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम लोग सवालात ले रहे हैं आपके। विद मी इन द पवेलियन आई गॉट शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान एंड वसीम अकरम। मोइन, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है, एक पैगाम आया है आपके और मेरे जाने पहचाने दोस्त हैं वो, और उन्होंने कहा है कि मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ दैट मोइन खान कैन स्टिल आउट रन मैनी playing 11 today. ठीक है ना? Where you and I would take 1, he will take 3, and if we ever decide to take 2, he'll probably run 5 runs. So that's a compliment I wanted to share. Hashtag Ask the Pavilion. Let me just go. Mohammad Ali Khan कह रहे हैं कि why is Kuldeep Yadav so successful at fuller lengths, whereas Shadab is so expensive at the same lengths? Is it because of the unusual angle Kuldeep has? This one. मुझे लगता है कि पिक नहीं कर रहे बैट्समैन अभी तक कुलदीप को राइट। लेग स्पिनर का फिर भी थोड़ा आइडिया, और अभी शादाब को खेले हुए बहुत हैं सारे। जो लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं उनकी गुगली भी पिक करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम होते हैं, आप बहुत कम खेलते हैं थ्रू आउट योर कैरियर, और जब इतने अरसे के बाद आप खेलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को आपने देखा कि बिल्कुल अगला गेंद भी वो टांगें जोड़ के खेल रहे थे, और ये उसी टाइम पे होता है जब आप बिल्कुल आपको कोई क्ल्यू ना हो कि गेंद किस तरफ जा रहा है। तो दैट्स द रीज़न। एंड उस कुलदीप ने कितनी दफ़ा खुद भी कह दिया कि पहले मैं स्लो बॉल करता था, तो इन द एयर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैट्समैन आइडिया लगा लेते हैं, उसको टाइम मिल जाता है आपको। अब वो टाइम भी नहीं मिल रहा बैट्समैनों को। इवन अगर फुलर बॉल भी है तो बहुत कम टाइम लगता है उसको आप तक पहुंचने में, और फिर नेचुरल वेरिएशंस इन पिचेस पे मिल रही हैं। दैट्स व्हाई ही इज मोर सक्सेसफुल। एक और चीज़ भी उन्होंने सीखी है, उन्होंने स्लाइडर सीखा है। पहले वो स्लाइडर नहीं करते थे, और दूसरा ये भी हो जाता है कि लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का एंगल भी चेंज होता है। ठीक है। तो वो जब जैसे उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा खेलते नहीं, जैसे आजकल ऑफ स्पिनर देखें वो विकेट्स ले रहे हैं और नॉन रेगुलर ले रहे हैं विकेट्स। वो इसलिए ले रहे हैं कि बैटर्स जो हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिनर एक तो कम आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कम करते हैं कि नहीं यार उसी संभाल लाएंगे, इसलिए। मैं भी कुछ क्योंकि विकेट के पीछे इतना ज़्यादा रहा हूँ और थोड़ा सा आइडिया भी है। एक तो एंगल की बात की दोनों ने बिल्कुल परफेक्टली, और फिर एक वेरिएशन बताई इन्होंने कि वो एक तेज़ बॉल भी मारता है जो कि हम लेग स्पिनर के उसमें हम फ्लिपर कहते हैं। दूसरी जो मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोशिश ये कर रहा है कि बॉल किसी तरह टर्न हो। जब बॉल टर्न होता है तो तमाम बैट्समैनों को आजकल दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदत है, बड़ी अच्छी पिचेस बन रही हैं, फ्लैट पिचेस हैं, बॉल बल्ले पे आ रहा होता है तो बहुत ईजी होता है खेलना। जब भी कोई बॉलर ऐसा आया जिसने टर्न करने की कोशिश की है, आज सेंडर के बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि टर्न जब हो रहा था तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, खेला नहीं जा रहा था। तो कुलदीप यादव की भी जो मेन वेपन है ना वो उसका टर्न है, बॉल को टर्न करना। वो इवन जो रॉन्ग वन भी करता है वो टर्न होता है बॉल उसका। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि शादाब को क्यों इसमें फिर मतलब नहीं, तो शादाब डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, डिफरेंट बॉलर ऑलटुगेदर। आई थिंक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वी कांट मेक मे बी थोड़ा लाइन का भी मोइन भाई जो बात आपने की कि कुलदीप को अगर देखें तो उसकी ऑलमोस्ट 90% बॉल्स स्टंप टू स्टंप। वो क्यों है स्टंप टू स्टंप? वो इसलिए है कि उसका बॉल अंदर आता है, जैसे ऑफ स्पिनर का बॉल आता है, दूसरा वो हमने देखा लेग स्पिनर का अवेज आता है, इसीलिए वो बनता नहीं है दोनों का। देखा था और डिस्कस कर रहे थे, कुलदीप यादव ने थोड़ा सा अपने आप जो उसका डिलीवरी है, एक्शन ठीक है, उसने थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप जाके कर रहा है। इस वजह से वो, मुझे ऐसा लगता है उसकी बहुत प्रैक्टिस की है, इसी वजह से उसके बॉल जो विकेट टू विकेट बहुत फिनिश हो रहा है। वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। कूल मोइन स्कूल का सवाल है और वसीम आपके हवाले से वो कह रहे हैं कि आस्क द पवेलियन, आई वांट टू से वसीम अकरम नॉट इन, व्हाई वसीम अकरम इज नॉट इनवाइटेड टू कमेंट्री फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ ही नॉट रेगुलरली कमेंटेटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट? क्या ये वजह है कि आपको उन्होंने नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं। दे आस्क्ड मी, आई वुड लाइक टू थैंक आईसीसी एंड हेड ऑफ प्रोडक्शन अजेश। They called me 2 months ago, but I've signed up with A Sports for 3 years. So आप मुझे
यहीं देखेंगे बड़े वर्ल्ड कप्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में इंशाल्लाह विद all the buddies. All right, And staying home is always bonus. Yes, it is. मुस्तफ़ा आबिद का सवाल है और वो है शुएब मलिक आपसे आज द पवेलियन में। मुस्तफ़ा आबिद MA कह रहे हैं कि मलिक साहब, एनी स्टोरी ऑफ योर स्टैलियंस मेट मोहम्मद आसिफ? बहुत सारी स्टोरीज होंगी। स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन यह है कि स्टैलियंस वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उस टीम की अचीवमेंट, स्टिल दैट टीम होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विनिंग स्ट्रीक। मेरे ख्याल में वो शायद उल्टा नहीं बोलना चाहता, फिर वो वसीम भाई की तरह आप लोग पीछे पड़ जाओगे। करके तू देख गलती, एक दफा गलती करके तू देख तेरे साथ देखिए मेरे हिसाब से वो बनते हैं 28 मैचेस, लेकिन बहुत सारे लोग 25 भी कहते हैं, 26 भी कहते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी अचीवमेंट है जो हम बड़े सारे जो उस टीम का हिस्सा हैं वो जब भी इकट्ठे हों तो मिलते हैं। और मोहम्मद आसिफ तो वो क्या ही बात है उसकी। चले, बेहतरीन हो गया, थैंक यू शुएब मलिक। इस वक्त हम एक और वक्फे की तरफ जा रहे हैं अभी, लेकिन इससे पहले कि हम वक्फे की तरफ जाएं, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग, हमारे इन हाउस प्रोड्यूसर ने दानिश अलवी वो कुछ स्टैट्स लेकर आए हैं हमारे लिए। वसीम अकरम वन द टॉस 58 टाइम्स इन 109 ODIs as captain. Misbah-ul Haq won the toss 37 times in 87 ODIs as captain. Moin Khan won toss 20 times in 34 ODIs as captain. Shoaib Malik won the toss 20 times in 41 ODIs as captain. मुबारक हो मोइन खान, ये मुकाबला वाज़े तौर पे परसेंटेजेस वाइज आप जीत गए, तो वेल डन। वो फार्मूला एक पे स्टिक रहना है बस। क्या रहना, एक ही मैं तो फैसलाबाद का कप्तान था ना, तो उस वक्त ग्रीन पिचेस होती थी, तो PIA से मैच था हमारा पेंटेंगुलर का, तो बकायदा जो है ना मुझे पकड़ लिया एजाज जूनियर ने कि आज तूने टॉस पे नहीं जाना। तो मैंने कहा कैसे ना जाऊँ मैं कप्तान? कहते तू एंड टाइम पे बाथरूम चला जाए, मैं चला जाऊँगा टॉस पे। मैं वॉशरूम चला गया, एजाज जूनियर वेंट फॉर टॉस, ही वन द टॉस, और वो ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं। हमने PIA को मेरे ख्याल में कोई अंडर 100 आउट किया था, मैच जीत गए। तो इतनी मेरा पूरा रिकॉर्ड था। और जिस किस्म की हमारी किस्मत है ना, वो मैं किसी और को मैं कहता मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तू जाके टॉस कर ले, वो टॉस जीत के बैटिंग लेके वापस आ जाता। जिस तरह की हमारी किस्मत अभी ना वो बैट्समैन थे, उन्होंने उस पिच में बारी नहीं लेनी। अभी कनाडा लीग में क्या हुआ है, कनाडा लीग में जो टॉस जीत रहा था वो मैच जीत रहा था, कंडीशंस ऐसी थी। और हमारे सुबह 9:30 बजे वाले मैचेस थे, तो पहला टॉस हारा मैं, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं टॉस करने जा रहा था, हमारे वालों ने पहले ही ना, क्रिस गेल ने भी पैड पहन लिए हुए थे, और दूसरा टॉम कूपर उसने भी पैड पहन लिए हुए थे। टॉस तो इन्हें जितना नहीं। Perception. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, it's the end of the show, but we've got something to share with you. Don't go away. Welcome back from the break, and this is the Pavilion. सूरत हाल कुछ इस तरीके से दोस्तों के वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को आप पहुंचाए, मगर कल के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज टुमारो इज ए बिग डे एट द ICC World Cup 2023. We have 2 games. It's a double header. First up, पहला मुकाबला आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, ये है इंग्लैंड द डिफेंडिंग चैंपियंस क्लैशिंग विद बांग्लादेश एट धर्मशाला, और ये मैच सुबह 10 बजे जो है वो शुरू होगा, तो आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश होगा। इसके बाद अगला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, आप और हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका। ये मैच कल दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, तो सुबह हम आपको जो है वो पहला मैच दिखाएंगे, उसके बाद जब ये मैच शुरू होगा तो हम इस पर कट वे कर जाएंगे। कल सुबह 8:30 बजे आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, राइट हियर ऑन A Sports, 10 Sports and the ARYZAP app, and we're going to bring you a lot of details and a lot of things about these 2 games tomorrow morning. With that, thank you gentlemen, thank you Shoaib, thank you Moin, thank you Misbah, thank you Wasim. Good night, get some well-deserved rest, because tomorrow we have a long day since we're going to be here for the entirety of these 2 games. With that, signing off, I'm Fakhri Alam. This is the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the ARYZAP app. अपना ख्याल रखिएगा. Good night.